look at chapter 9 of Daniel. Yesterday we were discussing about chapter 8. So what was the content of chapter 8? Chapter 8 में क्या था? It was a vision concerning Media and Persia and Greece. So Medo-Persian Empire was represented in that ram, Meda, and Greek Empire was represented in the animal goat. And what happened? The goat is coming and attacking the ram and destroying it. And the one horn on the head of goat, it is Alexander. After his death, after that one horn was destroyed, 4 branches, 4 horns came up. And from among these 4 horns, one more little horn came up. And that little horn is Antiochus Epiphanes IV, and he is persecuting the people of God. But God in his time judges that little horn and giving freedom for his people. So that is the vision of chapter 8. Today's discussion will be on chapter 9 of Daniel. What is there in chapter 9 of Daniel? Mainly there are 2 things in chapter 9 of Daniel. Daniel की किताब 9वें अध्याय में 9 अध्याय में क्या क्या है? 2 बातें हैं मुख्य रूप में. The first important thing in the chapter 9 of Daniel, it is a intercessory prayer of Daniel. Daniel का मध्यस्थ प्रार्थना मतलब intercessory prayer. बिचवाई में मतलब परमेश्वर और इस्राएल के बीच में खड़े होकर इस्राएल के लिए विनती कर रहा हूँ. Intercessory prayer of Daniel. And second one is a vision concerning or a revelation concerning 70 weeks. मतलब इस्राएल को परमेश्वर कब राज्य पुनर्स्थापना करेगा, इसके बारे में एक विजन भी दिखाया गया है. तो आउटलाइन का मतलब क्या है? रूपरेखा. आउटलाइन चैप्टर 9 वर्स 1 to 19. इंटरसेसरी मतलब मध्यस्थ, मतलब बिचवाई कर रहा. इंटरसेसरी प्रेयर. अब बाइबल में क्या लिखा है हेडिंग? हाँ, वो भी हिंदी में वो भी लिख सकते हैं. अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे. इंटरसेसरी प्रेयर 20 से लेकर लास्ट आयत. It's 27, right? लास्ट आयत 9:20 से लेकर 27 तक revelation of 70 weeks. revelation या प्रोफेसी भी लिख सकते हैं. The first part, it is chapter 9 verse 1 to 19. It is the intercessory prayer of Daniel. Second part of 9 chapter is from 20 to 27. ये किस चीज के बारे में? Prophecy of 70 weeks मतलब या revelation मतलब क्या है? खोलकर दिखाना, रहस्य को खोलना, revelation. तो 70 weeks किस चीज के बारे में? अभी कहाँ है? यहूदी लोग, the Jewish people are in exile, in bondage, in slavery. यहूदी लोग गुलामी में है. कब राज्य स्थापना होगा? वापस जाने के बारे में नहीं, परमेश्वर का राज्य कब स्थापित होगा करके समय के बारे में. 70 हफ्ता, उसका 70 हफ्ता मतलब अक्षरिक रूप में नहीं, ये भी क्या है? एक अपोकैलिप्टिक मैसेज है. इसका अर्थ कुछ अलग है. तो 70 हफ्ते के बारे में बोल रहा हूँ. उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर का राज का स्थापना. जैसे so 70 weeks were ordained by God for the establishment of the kingdom of God. So the kingdom of God that we see in chapter 2, chapter 7, all these are about the establishment of the kingdom of God. तो परमेश्वर का राज कब आएगा करके जो सवाल है, उसका उत्तर है 70 हफ्ते परमेश्वर नियुक्त किया है. उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर का
राज्य का स्थापना होगी। ये 70 हफ्ते के अंदर कुछ कुछ बातें होगा, वो भी बताया गया है संक्षिप्त रूप में, तो वो हम शाम को या कल देखेंगे। तो आज मेनली प्रेयर ऑफ डैनियल में हम फोकस करने वाले हैं। सो दीज आर द 2 कंटेंट्स इन द बुक ऑफ डैनियल। फर्स्ट वन इज इंटरसेसरी प्रेयर, सेकंड वन इज about the revelation or prophecy of 70 weeks. This is about the kingdom of God. KOG मतलब kingdom of God, short में मैंने लिखा है। So we'll come to the prayer of Daniel. So इससे पहले दानियल प्रार्थना करते हुए कहाँ देखा है? In the book of Daniel, where all we see Daniel praying to God. Can somebody tell? Daniel के पूरे किताब में, in the full book of Daniel, can you say some instances or some examples of Daniel praying in different parts of this book? First prayer of Daniel is seen in प्रार्थना, मतलब प्रार्थना जो किया वो पूरा प्रार्थना उधर होने का जरूरत नहीं, पर प्रार्थना किया करके कहाँ लिखा है? बाइबल देखने का जरूरत नहीं, पता होना चाहिए। अभी तक कितने बार पढ़ा? एक बार भी पढ़ा नहीं होगा। हाँ, दूसरा अध्याय में क्या है संदर्भ? When the Nebuchadnezzar King Nebuchadnezzar told the wise men of Babylon to interpret the dream, what Daniel is doing, Daniel and friends prayed together. जब नेबुकदनेस्सर राजा ने उनका जो सपना हुआ उसका भेद के बारे में जब क्या है उस ज्ञानी लोगों, बाबिलोन के ज्ञानी लोग से उसका अर्थ बताने के लिए बोला, उन लोग बोल नहीं पाया, उनको मारने के लिए आदेश दिया गया। तब दानियल और दोस्त लोग बैठकर प्रार्थना किया। तो पहला मुझे लग रहा है उधर है दानियल का प्रार्थना के बारे में, उसका उत्तर मिल गया उसी रात को सपना में। उस सपना का अर्थ दानियल को मिल गया। सो व्हाट इज सेकंड, वेयर इज द सेकंड टाइम? I think it is in chapter 6. जब Daniel was in the den of lions, in the story of the den, lion's den. What is the story there? The king Darius, the Persian king Darius was ruling, and दत्ता को याद नहीं आ रहे, ऐसे देख रहे कहाँ से बोल रहा है? So 6th chapter, what is the story? It was during the rule of King Darius of Persia, and some people were jealous about Daniel. Daniel was a very high officer in that empire, so some people were very jealous. उसके प्रति क्या था? जलन हो गया। दानियल के प्रति जलन रखते हुए कुछ लोग क्या किया? दानियल के विरुद्ध कुछ ना कुछ करना है कि सोच के क्या किया? चालाकी से राजा से जाकर बात किया और 30 दिन के लिए राजा के अलावा किसी को आराधना भी नहीं कर सकते, राजा के अलावा किसी से प्रार्थना भी नहीं कर सकते करके बाबिलोन में, उस पर्शिया में, दारियस के राज में क्या किया? उस बाबिलोन में, जगह बाबिलोन है पर राजा कौन है? दारा, हिंदी में दारा लिखा है। सो प्लेस इज बाबिलोन इन चैप्टर 6, बट द किंग इज Darius. Darius was a Median king, but rule was Persian. Cyrus was the emperor. Cyrus ने दारा राजा को बाबिलोन के ऊपर रखा है। तो सबसे बड़ा कौन है सम्राट? Cyrus. Cyrus was the first emperor of Persian kingdom. Cyrus appointed Darius. दारा राजा को कहाँ अपॉइंट किया? बाबिलोन के ऊपर अपॉइंट किया है। तो this Darius in chapter 6, what he is doing? He's making a law that all the people in his country or in his area of rule should not pray to any other gods apart from him. So what happened? Daniel, after hearing this rule, what he did? It did not affect him. उसको कोई फर्क, दानियल को कोई फर्क नहीं पड़ा ये नियम से। दानियल जैसे करते आ रहे थे, रूम में गए, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना करने का आदत था दानियल का। सो एज इट वाज हिज कस्टम, एज इट वाज हिज हैबिट, ही वेंट टू हिज रूम, ओपनड हिज, ये नहीं हमेशा
दरवाजा खोलकर या खिड़की खोलकर प्रार्थना करता है, ये नियम के बाद क्या करेंगे, मैं बंद करके, ऐसा भी नहीं सोचा। क्या है, जैसे वो करते आ रहे थे यरूशलेम के तरफ खिड़की विंडो खोलकर प्रार्थना किया। तो ये दुश्मन लोग इसी वक्त के लिए इंतजार करते, उनको पता है ये नियम आने के बाद भी ये प्रार्थना करेंगे करके, उनको पता है। सो पकड़ा गया दानियल को, क्या है, सिंह के मांद में डाला गया। तो उधर दानियल प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं रूम में, जब ये नियम लागू हुआ था रूम में प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। सो दानियल वाज प्रेइंग इन हिज रूम इवन आफ्टर दिस लॉ वाज पास्ड। हमारे नियम के अनुसार एंटी कन्वर्शन लॉ हमारे नॉर्थ इंडिया या इंडिया में ये चल रहे एंटी कन्वर्शन, राजस्थान में पता है ना। तो उस समय का एक नियम था, किसी और को आराधना नहीं कर सकते। सो Daniel went against that. He was put in the lion's den. So it was because of his prayer. He was not he did not compromise. समझौता नहीं किया प्रार्थना के जिंदगी के साथ. So Daniel is a man of prayer. So in chapter 2 we see Daniel praying for the revelation of the meaning. उस सपना का अर्थ मिलने के लिए 2 में प्रार्थना कर रहे, 6 में उसका प्रार्थना का आदत के बारे में हमको पता चलता है, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। उसके कारण जान भी खतरा में, उसका प्रार्थना लाइफ के कारण जान भी खतरा में। So his life came into danger because of his prayer life. So Daniel प्रार्थना को इतना महत्व देता था। अभी 9 अध्याय में, in chapter 9 we see Daniel praying. दानियल का प्रार्थना लिखा हुआ है, क्या क्या अपने लोगों के बारे में दानियल क्या प्रार्थना किया उसके बारे में, दानियल इस्राएल के बारे में दानियल का मध्यस्थ प्रार्थना क्या था उसका प्रार्थना भी लिखे रखा है 9 अध्याय में। सो इन चैप्टर 9 वी सी द इंटरसेसरी प्रेयर ऑफ दानियल फॉर द पीपल ऑफ इस्राएल। सो I already told you that the second part of this book is full of visions, but in between the vision there is a narrative of prayer. So इस विजन के बीच में एक नरेटिव दिया है, क्या है, किसका नरेशन है, दानियल का प्रार्थना का नरेशन दिया गया है। So the prayer is from Daniel chapter 9 verse 1 to 19. So we'll read 9 verse 1 onwards. I will read for you. All of you can listen to your look at your Bibles. So if you come to the prayer, इंटरसेसरी प्रेयर में 9 का 1 से लेकर 3 तक रीजन या कॉन्टेक्स्ट। रीजन मतलब कारण और संदर्भ, प्रार्थना का कारण, ऐसा एक प्रार्थना करने के लिए क्या कारण हुआ और उसका संदर्भ क्या है। अध्याय 9 का 1 से लेकर 3 आयत तक रीजन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेयर। इस लंबा प्रार्थना करने का क्या कारण हुआ और क्या संदर्भ है करके 9 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक लिखा है। So I'll read for you, all of you look carefully to your Bibles. In the first year of Darius, son of Ahasuerus. So it was in the time of King Darius. So this was happening in the king of during the rule of first year of King Darius. Darius का
फर्स्ट ईयर में ये प्रार्थना कौन कर रहा है? Daniel. So there is a difference. Some people say that Darius in chapter 6 of Daniel and this Darius is totally different. क्योंकि पर्शियन किंगडम में, पर्शियन राजाओं का इतिहास में बहुत सारे दारा राजा है, बहुत सारे डायरियस है. So if you look at the history of Persians, there are a lot of kings named Darius. So the Darius in chapter 6 of Daniel, it may be some, maybe another Darius. कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं. जो भी हो, ये इस डायरियस के बारे में क्या बोला है? शेरश राजा का बेटा. मतलब अहश्वेरोश कौन है? अहश्वेरोश एस्तर का कहानी में हम देखते हैं अहश्वेरोश, तो एस्तर की कहानी बाद में हुआ. तो शायद ये दोनों डायरियस अलग है. चैप्टर 6 का डायरियस और चैप्टर 9 का डायरियस एक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग भी हो सकता है. दो प्रकार का ओपिनियन है, जो भी है. क्योंकि इतना ही मैं बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग दिस डायरियस इन चैप्टर 6 एंड डायरियस in chapter 9, it can be different, because if it is not different also, there is no problem. So in the history of Persian kings, there are a lot of Darius, maybe 3 or 4 kings named Darius. So whatever it may be, it is in this prayer is prayed in the first year of Darius, who was the son of Ahasuerus या शेरश राजा का बेटा डायरियस का या दारा राजा का पहला वर्ष क्या हुआ? ये प्रार्थना दानियल ने किया. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डायरियस सन ऑफ Ahasuerus by birth a Med, means he was a Median king, means मेदिया का राजा था. मेदिया का राजा नहीं, मेदियन किंग था, मेद का राजा था. who became king over the realm of कैल्डियंस. कैल्डियंस मतलब बाबिलोन का दूसरा एक नाम है कैल्डियन. हिंदी में कसीदियों का करके, कसीदी करके एक शब्द है, वो बाबिलोन के लोगों के लिए बोलते हैं कसीदी लोग या कैल्डियंस. बाबिलोनी लोगों का अलग एक नाम है. हाँ, अहश्वेरोश, शेरश राजा लिखा है, हिंदी में शेरश लिखा है. सो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज रेन, I, Daniel, perceived in the books of the number of years, I, Daniel, perceived in the books the number of years that according to the word of the Lord to the prophet Jeremiah must be fulfilled for the devastation of Jerusalem, namely 70 years. हिंदी में ऐसे लिखा है, उनके राज के 9 का 2, उनके राज के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी. तो किस संदर्भ में यह प्रार्थना हुआ? ये दारा राजा का पहला जो वर्ष में दानियल यिर्मयाह का किताब पढ़ रहा था, तब उस किताब से क्या समझ में आया? यहूदी लोगों का, परमेश्वर के लोगों का बंधुआई कितने साल के लिए है? 70 साल के लिए है करके दानियल को समझ में आया. व्हेन, एक्सक्यूज मी, मेरा दादा है, 2 बार कॉल किया, मैंने सोचा कुछ जरूरी चीज है. So, in the first year of King Darius, what happened? Daniel was reading the book of Jeremiah. यिर्मयाह दारा राजा के पहला वर्ष में यिर्मयाह का किताब पढ़ रहा था. यिर्मयाह की किताब से ये पता चला इस्राएली लोगों का बंधुआई कितने साल के लिए है? 70 साल के लिए है. Daniel understood that the exile of the people of God is just for 70 years from the book of Jeremiah. So where it is written in Jeremiah about the number of the years of exile, we can read Jeremiah chapter 25, 11 to 12.
सारी जातियों का ये देश उजड़ ही उजड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगे। सो दानियल 25 का 11 और 12 में बंदुआई का समय भविष्यवाणी किया गया है। 70 साल के लिए इसराइल या यहूदी लोग बंदुआई में रहेंगे। तो ये रेफरेंस कहाँ देखते हैं? रेफरेंस ऑफ एक्साइल यिर्मयाह 25 का 11 और 12। एक और आयत है 29 का 10 और 11। For thus saith the Lord, when 70 years are complete for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this land. So in the book of Daniel, in two places, first one in 25, 11 and 12, second place 29, 10 and 11, we see two times in the book of Jeremiah, it is written about the duration of exile. मतलब उस एक्साइल बंदुआई का समय कितने साल इसराइली लोग, यहूदी लोग बंदुआई में रहेंगे करके 2 बार यिर्मयाह की किताब में बताया गया है। जब दानियल ने ये किताब पढ़ा या यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ा, दानियल को पता चला क्या है 70 साल के लिए है बंदुआई, मतलब अभी टाइम हो गया, मतलब बाबिलोन का राज खत्म हो गया तो 70 साल भी खत्म हो गया। यिर्मयाह की किताब में लिखा है बाबिलोन को क्या करूंगा मैं? न्याय करूंगा। मतलब 70 साल खत्म होने पर बाबिलोन का राज भी खत्म होगा, लोग बंदुआई से वापस भी आएंगे करके समझ में आया। उस संदर्भ में ये भविष्यवाणी, परमेश्वर का ये वायदे को जब पढ़ा, उसके आधार पर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहे हैं। So what is the context of the prayer? When Daniel understood the duration, the time period of exile, and he understood that the 70 years are over, now this is the time for the people of God to go back to the land, homeland. So he is praying based on the promise of God. परमेश्वर ने ऐसे वायदा किया है 70 साल के बाद इसराइली लोगों को कहाँ लेके आएंगे? अपने देश में वापस लेके आएंगे करके वायदा किया है। इस वायदे को समझते हुए, इस समय को समझते हुए, ये समझ होने पर क्या कर रहा है? इसराइल के लिए प्रार्थना कर रहा है। अभी ये समय पूरा हो गया, क्यों प्रार्थना कर रहा है? कारण ये प्रार्थना के बारे में पढ़ते समय पता चलेगा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। सो आफ्टर दिस 70 years, the time is finished for the exile. The time has been completed. So why to pray after this 70 years of after the completion of 70 years? Now it's the time for going back. So what is the need of a prayer? So if we read the content of the prayer, we will understand why he prayed. ये प्रार्थना के अंदर क्या क्या है करके जब हम पढ़ते समय हमको पता चलेगा। ये 70 साल खत्म होने के बाद क्यों ऐसा एक प्रार्थना कर रहा है। So we are going to look at the content of this prayer. इसमें एक संदेश ये लेना है, कभी भी क्या है हम बाइबल, there is a concept called scripture driven prayer, मतलब परमेश्वर के वचन के आधारित प्रार्थना करने का एक आदत हमारे अंदर होना चाहिए। प्रार्थना तो सब लोग करता है, everyone prays. So there is a wonderful thing about praying according to the scriptures. वचन के अनुसार प्रार्थना करना, ये दानियल का नमूना से हम देखते हैं। वचन में कुछ चीजें पढ़ा और उसके बारे में, उसके आधार में कुछ प्रार्थना कर रहा है। तो ये आदत हम भी, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ प्रार्थना करते समय, परमेश्वर का वचन के आधार पर कुछ प्रार्थना करते समय, परमेश्वर को वो क्या है, वो स्वीकार करता है, परमेश्वर उस पर प्रसन्न होता है, क्योंकि हम वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन का और वायदे के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं, या उसका आधार पर कुछ विनती हम मांग रहा है। सो डैनियल टीचर्स टू प्रे अकॉर्डिंग टू द scriptures, or Daniel's prayer in chapter 9 teaches us to pray according to the scripture, or pray based on the scripture, or pray according to the promises of the scripture. That is one lesson that we get from this reason for prayer. तो reason क्या है? 70 साल अभी खत्म हो गया,
यहूदी लोगों का वापस जाने के समय आ गया, इस समय पर, इस संदर्भ पर क्या है, ये प्रार्थना हो रहा है। कारण भी ये है, 70 साल खत्म हो गया, अभी ये लोगों का भविष्य के लिए परमेश्वर इनके ऊपर तरस खाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन द प्रेयर। ये प्रार्थना नहीं है, पर प्रार्थना का संदर्भ लिखा गया है। अभी प्रार्थना में आएंगे। सो ये इंटरसेसरी प्रेयर कहां से शुरू होता है? 9 का 4 से लेकर 15 नहीं, 19। सो ये प्रार्थना कहां से दिखता है? 1 से 3 तक संदर्भ है या कारण है प्रार्थना का। 9 का 4 से लेकर 19 तक प्रार्थना जो किया है उसको ऐसे ही लिखे रखा है। सो इन verses 1 to 3 we see the context of prayer and the reason for prayer, and from verses 4 to 19 we see the prayer proper, means the prayer of Daniel is written down in verses 4 to 19. And when we read this prayer, we can divide this prayer into 2 parts. This prayer of Daniel is divided into 2 parts. First part is 9 words, 4 to 15. Second is 9 verses, 16 to 19. मुझे लग रहा है 14 या 14. So first part is 9, 4 verse 14. Second part of the prayer is now 15 से लेकर 19, 15 to 19. So what is in the first part? 14, 14. क्या है? 9 का 4 से 14 क्या है? पैराग्राफ वो उसमें ऐसा होगा, पर 14 तक है, ठीक है। So now 4 to 14 is the first part. In the first part, what is happening? In the first part, it is confession of sins, and पहला भाग में क्या है? कन्फेशन ऑफ सिंस मतलब पाप को अंगीकार करना और परमेश्वर का दया और क्षमा के लिए विनती करना। यह है पहला भाग का कंटेंट। कन्फेशन ऑफ सिंस क्या है? इस्राएल के, परमेश्वर के लोगों के पाप के लिए, उस पाप क्या क्या है करके लिखता है और उस पाप को क्षमा करने के लिए भी विनती करता है। कन्फेशन ऑफ सिन, पाप का अंगीकार किसके किसके पाप? दानियल बहुत बड़ा पाप करके नहीं बैठा है, पर यहूदी लोग, सारे लोगों के बारे में, सबके लिए, उस यहूदी जाति जो सारे जो लोग हैं, सबके पापों के लिए क्या है? प्रार्थना कर रहे। परमेश्वर उनका पाप क्या क्या है करके बताता है और परमेश्वर का दया के लिए विनती करता है। यह है पहला भाग। सो पहला भाग की ओर हम आएंगे, फिर उसके बाद दूसरा भाग में हम आएंगे। सो पहला भाग का कन्फेशन ऑफ सिंस में जब हम आगे पढ़ते समय एक एक आयत हम धीरे धीरे पढ़कर आगे बढ़ेंगे। 9 का 4 में 4 पढ़िए कोई। I pray to the Lord my God and make confession, saying, O Lord, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love
with those who love him and keep his commandment. His commandment. ठीक We है, have sinned and done wrong and acted wickedly and rebelled, turning aside from the commandments. enough. So in 9 verse 4, Daniel is beginning his prayer. प्रार्थना को क्या करता है? शुरू करता है. क्या बोलकर शुरू करता है? परमेश्वर कौन है, क्या है, ये बोलकर प्रार्थना शुरू करता है. हम भी कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारे स्वर्गीय पिता या कुछ अलग अलग परमेश्वर को अलग अलग नाम बुलाकर हम परमेश्वर कौन है, क्या है, ये करके कुछ लोग क्या प्रार्थना है? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक या सृष्टिकर्ता परमेश्वर. ऐसे बोलते समय क्या है? हम परमेश्वर, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं ये बोल रहा है. परमेश्वर जो हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर कौन है? आकाश और धरती का रचयिता है, उद्धारकर्ता. यीशु मसीह बोलकर प्रार्थना करते हैं, वो उद्धार करता है. तो प्रार्थना कैसे आरंभ करता है ये बहुत मायने रखता है. दानियल कैसे प्रार्थना आरंभ कर रहा है? इन चैप्टर 9 verse 4 आई विल रीड फॉर यू. I prayed to the Lord my God and made confession saying, Lord, great and awesome God. परमेश्वर के बारे में क्या क्या बोलते हैं? ग्रेट एंड awesome God. परमेश्वर महान है. Keeping covenant and steadfast love with those who love you and keep your commandments. तो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, ये सब बोलकर प्रार्थना शुरू करता है. हिंदी में ऐसे लिखा है 9:4 में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग्य है. परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, ये सब बोलकर शुरू करता है. तू महान और भययोग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है. 2 बातें हैं. पहला है परमेश्वर महान और भययोग्य है. दूसरा बात, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उनको प्रेम करने वालों के साथ अपना वाचा क्या है, वो वाचा पूरा करने वाला, वफादार, जो उसको प्रेम रखने वालों के साथ परमेश्वर विश्वास योग्य है. अपना वाचा को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है, उनके ऊपर दया करने के लिए विश्वास योग्य है. सो डैनियल इज अड्रेसिंग मतलब परमेश्वर से बात करते समय परमेश्वर को क्या बोलता है? परमेश्वर महान और भययोग्य है और उनको जो लोग प्रेम करते हैं उनके साथ वफादार है, ये बोलकर प्रार्थना शुरू करता है. तो ऐसे हमारा प्रार्थना भी, इसका संदेश आप लोग समझना, when we pray we should add some of these words. ये नहीं दानियल जैसे प्रार्थना किया वैसे ही प्रार्थना करना, but we should know that to whom we are praying. किससे हम ये नहीं प्रार्थना करने के लिए बोला प्रार्थना कर दिया, इस एटीट्यूड से कोई प्रार्थना, क्योंकि हम राजाओं के राजा से बात कर रहे हैं, सारे पृथ्वी का सृजनहार से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा पिता से प्रार्थना कर रहे हैं. तो प्रार्थना करते समय हमेशा ये याद रखना हम किससे प्रार्थना करता है और किस प्रकार का परमेश्वर है. वो महान है, भययोग्य है, उनके साथ, उनको जो प्रेम करते हैं उनके साथ क्या है, दया और प्रेम रखने वाला, और उनके साथ विश्वास योग्य है, जो भी वो वादा किया है वो पूरा करने के लिए वो ये बोलकर प्रार्थना शुरू करता है. तो दानियल क्यों ऐसे शुरू करता है आगे जाकर हमको पता चलेगा, क्योंकि इस्राएल लोग पूरा वादा तोड़ के रखा है. परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, जो वादा है, उससे बाहर आ गया है. अनाज्ञाकारी होकर, बलवा करते हुए ये वादा को तोड़कर इस्राएल गए हैं. तो इसलिए ये बोलकर, सो व्हाई डैनियल इज commencing or starting his prayer with such words, because he is telling God is faithful to keep his covenant with those who love him. He is a great and awesome God. Why? Because Israel has broken the covenant. So with those who love him and obey him, he is kind and merciful. He will fulfill all the promises and the covenantal clause. So he is faithful.
but Israel has broken the covenant. That's why they are in exile. इसराइली लोग परमेश्वर के साथ जो वाजा बांधा था मूसा के समय में, जो भी नियम और वाजा परमेश्वर के साथ बांधा था, उसको क्या किया? उल्लंघन किया, इसलिए उन लोग बंधुआई में है। अभी बंधुआई का समय खत्म हो रहा है, उस समय पर यह प्रार्थना हो रहा है। अभी प्रार्थना किस किस बात के लिए कर रहे हैं? We can read verse 5. We have sinned and done wrong and acted wickedly, and we did turning aside from your commandments and rules. So ये फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बोला? फर्स्ट पार्ट नाउ 4 से लेकर 14 तक इट्स अ कन्फेशन ऑफ सिन, एंड ऐसे हेडिंग लिख सकते हैं, मैं कुछ और लिखा था, रिक्वेस्ट फॉर मर्सी भी है, कंडीशन ऑफ द पीपल एंड कन्फेशन ऑफ सिन। कंडीशन ऑफ people of God and confession of Sin. तो परमेश्वर के लोगों का हालत के बारे में भी बताता है ये पहला भाग में, और उनका पाप के बारे में अंगीकार भी करते, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते। तो वो भाग 5 से शुरू करता है। When we read verse 5 of chapter 9, it begins by saying, we have sinned. हम पाप किया है। दानियल ये नहीं बोल रहा है इस्राएली लोग पाप किया है। दानियल क्या बोल रहा है? हम पाप किया है। दानियल अपने आप को भी, मतलब वो खुद इस्राएली है, यहूदी है। इससे प्रार्थना के बारे में, इंटरसेसरी प्रेयर के बारे में एक और बात हम सीख सकता है। हम कुछ पापी लोग के लिए प्रार्थना करते समय, या हमारे कलीसिया या हमारे लोग, परमेश्वर के लोग पाप करते समय, किसी प्रकार से हम भी उसमें शामिल है। ये नहीं दानियल बहुत बड़ा पाप किया, पर दानियल भी उनमें से एक है। तो कई बार हम क्या करते हैं? हम दोष लगाते हैं, वो कलीसिया ऐसा है, ये कलीसिया ऐसा है, ये पादरी है। सिर्फ हम कौन है? पवित्र है। बाकी सारे कौन है? अशुद्ध लोग हैं। उन लोग ऐसा किया, वैसा किया। मेनी टाइम्स when we pray for our own people, when we pray for our church, the people of God, many time we in our talks, what we do, we blame them. This church is like that, something like this happened in this church, that pastor is not good. We will tell, maybe that is real. It's not that we are telling lie. There are a lot of problems among the people of God, but we are not to blame them. Some people, what they do, they think that they are righteous and holy, and all others are false and they are sinners. But Daniel is telling वो उसको भी उस लोगों के साथ क्या करता है? एक हो जाता है। मन में, प्रार्थना में दानियल अपने लोगों के साथ जुड़कर बोलता है, हमने पाप किया है। ये नहीं मैं धर्मी हूँ। दानियल धर्मी व्यक्ति था। दानियल परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। छोटी सी छोटी बातों में भी, पहला अध्याय में वो ऐसे सोच सकते थे, थोड़ा सा खाने के बारे में है, छोड़ देते हैं, समझौता करते हैं। राजा जो देते हैं खा सकते हैं। He would have compromised in first chapter. He can, but he did not. Daniel did not think that it's just a matter of food. The king has given us this food and we will eat it. This is a very little matter. What is big thing in eating some food? He did not think like that. He was very serious about the commandments of the Lord. So he is a very righteous person. He is a person who loves the Lord, but he tells we have sinned. जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ क्या है? एकता में आ जाता है। Daniel is uniting himself with his own people when he pray for the sins of his own people. लोगों के साथ एक होना, इंटरसेसरी प्रेयर में, मध्यस्थ प्रार्थना में क्या है? इस विचार के साथ प्रार्थना नहीं करना, मैं पवित्र हूँ, दूसरे पापी हैं। ऐसा एक प्रार्थना सुसमाचार में हम देखता है। एक फरीसी भी प्रार्थना किया, एक चुंगी लेने वाला भी। फरीसी क्या है? अपना खूबी के बारे में प्रार्थना किया, पर
चुंगी लेने वाला क्या है? परमेश्वर का दया के लिए प्रार्थना किया। किसका प्रार्थना का उत्तर मिला? सो हमारा द एटीट्यूड मैटर्स व्हेन वी प्रे। देयर इज an instance in gospel, Luke chapter 16, I think 16 or 11. There is a story that a Pharisee is also praying there, and a tax collector is also praying. The Pharisee prayed about his own merits, his own good characters and good deeds that he done before the Lord. But the tax collector is asking for the mercy of the Lord. The Lord blessed and heard the prayer of the tax collector. Pharisee was rejected before the Lord. So the attitude of prayer matters. अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना, and we are praying for some people, we should be one with them. उनके दर्द के साथ, उनका हालतों के साथ हमारा मन क्या होना चाहिए? ये नहीं उन लोग कुछ पाप किया होगा इसलिए उन लोग, मैं पवित्र हूं, उन लोग पापी हैं, ये एटीट्यूड के साथ कभी प्रार्थना। अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते समय दानियल धर्मी था, फिर भी ये ऐसा प्रार्थना कर, Daniel could have prayed like this. Daniel could have prayed like this, saying, Jewish people, my people, they sinned. मतलब वो उन लोग पाप किया करके प्रार्थना कर सकते थे। दानियल ने क्या किया? We have sinned, ऐसे बोलकर शुरू करता है प्रार्थना। हमने पाप किया। वर्स 5, हम लोगों ने तो पाप कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया है। क्या क्या? एक लिस्ट लिख रहा है। यहूदी लोग परमेश्वर के सामने क्या क्या किया उसके बारे में एक लिस्ट दिया है। एक ही बात है, पाप किया है करके एक ही शब्द में बोल सकते हैं, पर उनका पाप इतना बड़ा है, बहुत कुछ बोलने के बाद भी खत्म एक ही बात के लिए, मतलब परमेश्वर से पाप किया करके खत्म कर सकते हैं, पर उनका पाप इतना बड़ा है, इतना गहरा है, पाप के बारे में जितना भी शब्द है वो सारे इस्तेमाल करो फिर भी खत्म। इतना परमेश्वर के विरुद्ध इन लोग पाप, एक ही बात बोल रहा है, हर एक शब्द का अर्थ एक ही है। पाप किया, गलती किया, कुटिलता किया, नियमों को तोड़ दिया, सब एक ही बात है। परमेश्वर के विरुद्ध जिंदगी बिताया, परमेश्वर के नियमों को तोड़, सब एक ही बात है, पाप किया। पर इतना वर्णन क्यों कर रहा है? क्योंकि पाप इतना कठिन और गहरा है, उसके बारे में अंगीकार करते समय शब्द काफी नहीं है, इतना गहरा और बड़ा है इस्राएल के पाप। Why Daniel is using a big list of the sins of Israel? We have committed sin, we did wrong, we broke the laws of the lot of things he is listing. Everything is one. He can just say by telling that we have sinned. Everything will include in that. But he is using different synonyms. क्या है? एक ही बात बोलने के लिए अलग अलग। The sins of Israel was such, it was very great. The sin was very big and deep. That's why he is using lot of different words to confess the sins. What are the words that he is using to confess the sin? The first thing is, when we look at verse 5 and 6, आयत 5 और 6 में क्या क्या शब्द बोलकर दानियल अपने लोगों का पाप का अंगीकार कर रहा है? The first we have, हमने तो पाप किया है, we have sinned। ये कहाँ देखते हैं? आयत 5 में देखते हैं, इस प्रार्थना का आयत 8 में देखते हैं, 11 में देखते हैं, और इसी प्रार्थना में, इसी अध्याय का 4 आयतों में ये शब्द इस्तेमाल किया है, हमने पाप किया। दानियल अपने आप को भी उस लोगों के साथ एकता में लेके आ रहा है। We have sinned। ये दोनों आयत के बारे में हम बात कर रहे हैं, 5 और 6। दूसरा, पाप अंगीकार करते समय कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? डन रॉन्ग, मतलब गलती किया है। हिंदी में क्या? कुटिलता। डन रॉन्ग मतलब गलती किया है करके बताया है। यह भी 5 आयत में। एक्टेड विकेटली,
एक्टेड विकेटली मतलब दुष्टता, हिंदी में क्या है? दुष्टता, एक्टेड विकेटली, दुष्टता किया है, वो कहाँ लिखा है? 5 में है। चौथा रिबेल्ड, ये है बलवा, रिबेल्ड, रिबेल्ड। रिबेल्ड मतलब क्या है? परमेश्वर के खिलाफ, विरुद्ध खड़े होना, एक प्रकार का जानबूझकर आज्ञा नहीं मानना। यह है जानबूझकर क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध, हाँ, बहुत हिम्मत के साथ क्या है? विरोध कर रहे परमेश्वर को। रिबेलियन या रिबेल्ड। दूसरा क्या है? टर्निंग अवे, टर्निंग अवे मतलब मुड़ना, टर्निंग अवे फ्रॉम, परमेश्वर के नियमों से क्या है? पीछे मुड़ा, या परमेश्वर का नियम और कानून से क्या है? मुंह फेर लिया या उससे मुड़ गए। ये पांच में भी हम देखते हैं, आयत 5 और आयत 9 में भी यही शब्द इस्तेमाल किया है। अभी लास्ट 6 दिखाई दे रहे सबको? हाँ, नीचे दिखाई दे रहे? अमर सिंह, या ऊपर लिखना है? हाँ, सॉरी, थैंक यू। डन रॉन्ग या डिड रॉन्ग, एक्टेड विकेटली, रिबेल, टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड्स कमांडमेंट, परमेश्वर का नियमों से मुंह फेर लेना या पीछे मुड़ना। एक और शब्द इस्तेमाल किया है आयत 6 में, वी हैव नॉट लिसन टू यू। वी मतलब कौन है? यहूदी लोग, नॉट लिसनिंग टू गॉड। नॉट लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनने के लिए नहीं बोला है, आज्ञा मानने के लिए भी बोला है। लिसन मतलब क्या है? आज्ञा मानना, ओबे। So whenever you see listen, when God say listen, it means obey. That is the meaning of listen when God commands it. Not listening to God. That परमेश्वर का आवाज नहीं सुना कब? Not listen to, sorry, not listen. परमेश्वर बहुत बार अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दास लोगों को इस जनता के बीच में भेजा। मूसा के समय से लेकर कितना भविष्यवक्ता इनके बीच में आया था, पर उनके बाद इन लोग नहीं माना। उनके राजाओं से बात किया था भविष्यवक्ता, उनका अधिकारियों से बात किया था, आम लोगों से बात किया था, याजकों से बात किया था, पर परमेश्वर का वचन जो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इनके पास जब कभी आया, उन लोग क्या किया? ज्यादातर मना किया है। So what is this not listening to the servants of God or prophets? What is the meaning? From the time of Moses, God sends lot of prophets for his people, and many times, most of the times, people disobeyed the voice of God through which they heard through the prophets. That is also the sin. So Daniel is confessing the sin of Israel. Starting from we have sinned, we did wrong, we acted wickedly, we rebelled, we turned away from the commands of the Lord, we did not listen to the voice of the Lord. एक ही है सब कुछ, क्या है? एक ही है, ये सब कुछ अलग नहीं है, पर इतना बोलने से भी काफी नहीं, इतना गहरा और बड़ा है इनका पाप।
हम ये क्यों इतना एक ही बात बोलने के लिए 6 शब्द या 6 पॉइंट्स इस्तेमाल किया है, क्यों ऐसे? अगर एक बात के बारे में अगर हमारा मन भरा है तो एक शब्द में हम बोल, अगर एक खुशी की बात आ गया, खुशी के बारे में बात करना है, ये नहीं बोलते कोई मैं खुश हूं, क्योंकि हृदय क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। तो जो कुछ शब्द बरकर आता है वो बताता है। वैसे ही दुखी होते समय भी क्या है, कंट्रोल। कुछ लोग दुख होकर चुपचाप बैठते हैं, पर क्या है, एक हद है, हद के पार क्या है, जो मुंह में आता है, कभी गाली भी बोलते हैं, जो कुछ मन में भरा है वो बकता है। तो एक शब्द में जब मन भरा है, चाहे दुख हो, सुख हो, गुस्सा हो, जब मन भर जाता है, एक बात बोलने के लिए 100 शब्द। तो ये क्या है, एक ही बात के बारे में बोल सकता, ये नहीं। ये दानियल बहुत दुखी है, परमेश्वर के लोगों के पाप के बारे में सोचते समय, यहूदी लोगों के, अपने लोगों के बारे में देखते समय, उनके बारे में सोचते समय क्या है, मन दुख से भर जाता है। जब ये दुख से मन भर जाते समय बहुत सारे शब्द निकल रहा है, हमने पाप किया, हमने कुटिलता या गलती किया, हम दुष्टता किया, हमने बलवा किया, परमेश्वर का नियमों से अब मुंह फेर लिया या पीछे मुड़ा, परमेश्वर के दास लोगों का, भविष्यवक्ताओं का आवाज हमने नहीं सुना। एक ही बात बोलने के लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हुए ये प्रार्थना शुरू करता है। वर्स 5, द किंग आंसर्ड, Daniel chapter 9 verse 5, it is written, we have sinned and done wrong, acted wickedly and rebelled, turning aside from your commandments and ordinances. We have not listened to your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings, our princes, and our ancestors, and to all the people of the land. तो उनका पाप को अंगीकार करते हुए ये प्रार्थना शुरू करता है। अभी 7 और 8, ये 5 और 6 आयत के बारे में मैंने बताया। कोई 7 और 8 पढ़ो हिंदी में। We can read verse 7 and 8 in हिंदी। हे प्रभु, तो धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों का क्या समेत, क्या दूर के सब इस्राएली लोग को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण भी जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर-बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरोध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। Yeah, so in verse 7 and 8 of chapter 9, what is written? Righteousness is on your side. या परमेश्वर तू धर्मी है, you are the God of justice, you have done rightly। मतलब कैसा धार्मिकता का काम परमेश्वर किया है? दानियल ने ये बोल रहा है, Daniel is saying that God sent his people to exile because of their sins. God send his people to slavery because of their sins. So sending the people of Israel to exile was an act of righteousness of God. परमेश्वर जब अपने लोगों को बंधुआई में भेजा, ये परमेश्वर क्या किया है? एक धार्मिकता का काम किया है। परमेश्वर सही है ऐसे करने में। दानियल बहुत सरल रूप में दानियल ये बता रहा है, परमेश्वर तूने अपने लोगों को बंधुआई में भेजा, तूने सही किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, पर हमने क्या किया? ये वाजा में दोनों विश्वास योग्य रहना था। The covenant that the Lord made with Israel, in that covenant both the parties should be faithful. The Lord also should be faithful to his people, the people also should be faithful to the। परमेश्वर जो कुछ वायदा किया है, वाजा बांधा है, परमेश्वर उसमें हमेशा विश्वास योग्य रहा है,
पर इस्राएली लोग बाजा बांधते समय हम परमेश्वर का सब आज्ञा मानेंगे करके बाजा बांधा था। निर्गमन की किताब 19 और 20 आप लोग पढ़ के देख लीजिए। जब ये उधर वाजा बांध रहा है, तो जब वाजा बांधा था इस्राएली लोग क्या बोला, हम परमेश्वर का सारा नियमों को पालन करेंगे, ये है वाजा। तो परमेश्वर हमेशा विश्वासियों की रहा, इस्राएल लोग हमेशा क्या किया, वाजा को तोड़ दिया, आज्ञाओं को तोड़ दिया है। इन दिस जर्नी ऑफ all these years, starting from the Exodus, how many years have passed? Lot of years have, centuries have passed. But now also what is happening? God is faithful, but his people are unfaithful. Throughout all the history, Israel has deceived the Lord. Israel was unfaithful to the Lord. That's why Daniel is telling, Lord, you are right. You did right thing when you send your people to exile. हम है तो क्या प्रार्थना करें, परमेश्वर तूने मुझे धोखा दिया। हमें क्या है, सालों पहले हमारे पूर्वजों को कहाँ से लेके आया, मिस्र से लेके आया, कनान दिया, अभी कनान से हमें भगाया। तूने हमारे साथ क्या किया, बहुत बड़ा गलती। अपना पाप को कभी हम नहीं मानेंगे। डैनियल इज टेलिंग, परमेश्वर तूने सही काम किया, यू आर राइचियस, तू धर्मी परमेश्वर। जो कुछ तूने किया है हमारे साथ, उसमें तू कौन है, कोई गलती नहीं किया है, तू धर्मी है करके कौन बोल रहा है? डैनियल इज सेइंग यू आर राइचियस। अभी आगे पढ़ते समय, व्हाई द लॉर्ड इज राइचियस? राइचियस इज ऑन योर साइड ओ लॉर्ड। परमेश्वर धर्मी है, हम क्या है, हम शर्मिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे, इसलिए हमारे ऊपर क्या है, शर्मिंदगी आया है। ओ लॉर्ड, you are righteous, but open shame, as at this day, falls on us, the people of Judah, the inhabitants of Jerusalem, and all Israel, those who are near and those who are far away, in all the lands to which you have driven them, because of the treachery that they have committed against you. तो परमेश्वर इसलिए लोगों को बंधुआई में भेजा या तितर बितर कर दिया एसवेम से, इसलिए कि परमेश्वर के विरुद्ध उन लोग पाप किया। तुमने ऐसा किया, सही किया, तूने कोई गलती नहीं किया करके प्रार्थना कर रहे। वर्स 8, ओपन शेम, फिर से वही शब्द, हम शर्मिंदगी में है। 8 में पढ़ते समय, 9 का 8 में हिंदी ऐसे बताता है, हे यहोवा, हम लोग ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। पर परमेश्वर जो कुछ उसने किया उसमें धर्मी है। आयत 7 है, प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोग को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, क्योंकि इस वाजा में परमेश्वर वफादार रहा, इस्राएली लोग क्या है, विश्वासी हो गए नहीं रहा, इसलिए लज्जित होना पड़ता है। आगे जाते समय verse 9 and 8, can you read verse 9 and 8? Us, O Lord, belong consent to our king, to our princes, and to our father, because we have sinned against you. To the Lord our God belong mercy and forgiveness, for we have rebelled against him. Yeah. 10 also. And have not obeyed the voice of the Lord our God by walking in his law, which he set before us by his servant the prophets. ये सब कुछ बोल रहा है, मैं हमने पाप किया, बलवा किया, परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, तू सही किया, हमें बंधुआई में भेजा, ये सब कुछ कर रहा है। पर ये सब कुछ बोलने के बाद परमेश्वर का दया और परमेश्वर का क्षमा के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? 9 और 10 में हिंदी में, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। खान मतलब क्या है हिंदी? ठीक है,
तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है 9 verse 8 9 and 10, to the Lord our God belong mercy and forgiveness। मतलब परमेश्वर दया और क्षमा करना वो किसका है? परमेश्वर का है। लोग तो पाप किया है, पर परमेश्वर दया का परमेश्वर है, क्षमा का परमेश्वर है। ये बोलकर नहीं प्रार्थना कर सकते हम धर्मी है इसलिए हमें आशीष दो। उन लोग बहुत क्या है, शर्मिंदगी में है, क्योंकि इतना पाप करके बैठा है, सालों से सदियों से परमेश्वर से बलवा करते आ रहा है, इसलिए सिर उठाने के लिए भी हक नहीं है। पर किस आधार पर प्रार्थना करना है? सिर उठाने के लिए भी लायक नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रार्थना करने के लिए क्या फायदा है? क्योंकि इतना गलती कर बैठा है, अभी उम्मीद कहाँ है? उम्मीद एक ही बात में है, हमारा परमेश्वर क्या है? दया करने वाला परमेश्वर और क्षमा करने वाला परमेश्वर। गॉड इज गॉड ऑफ forgiveness and compassions। तो किस आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं? गलती कर बैठा है, अभी आगे क्या उम्मीद है? उम्मीद एक ही बात में है, परमेश्वर का इस स्वभाव, वो दया करने वाला परमेश्वर है। और तो इतना कुछ लिस्ट बोल दिया, अभी हमने पाप किया है, कुटिलता किया है, बलवा किया है। अगर हम परमेश्वर के जगह में है तो क्या करता है? ऐसे लोगों को उसी समय क्या करता है? हाँ, चकनाचूर कर देते। पर परमेश्वर इनको अभी भी जिंदा रखा है। क्यों? परमेश्वर दया का भी परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैंने ऐसे ऐसे क्यों लिखा है? कंपैशंस, फॉरगिवनेस, प्लूरल बहुवचन में लिखा है। क्यों? इंग्लिश और हिंदी में एक मतलब सिंगुलर में दिया है, दया और क्षमा करने वाला, पर हिब्रू में पढ़ते समय क्या है? हम प्लूरल में है, क्या है? बहुत दया करने वाला। ऐसा इधर भी है ना। हिंदी में क्या शब्द है? दया करने वाला सागर। हाँ, दया सागर लिखा है, सही है। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुत दया करने वाला। इंग्लिश में इतना क्लियर नहीं है आपसे, पर हिंदी में सही है। दया सागर, कंपैशन, बहुत बार क्या है? दया करता है। बहुत बार क्या करता है? करुणा। कितने बार हमारे जीवन में भी कितना गलती किया। अगर एक गलती करने में परमेश्वर दंड दिया तो कोई, मैं भी क्लास नहीं लेंगे, आप भी क्लास में नहीं बैठे, ये दुनिया नहीं होगा। इसलिए एक भजन संहिता में ऐसे लिखा है, मैं भूल गया, इस धरती परमेश्वर का दया से भरा है करके। मैं भूल गया कौन सा भजन संहिता। आप लोग है ना भजन संहिता पढ़ रहे हैं आजकल? याद है कौन सा भजन संहिता? मैं ढूंढकर बताऊंगा। पर धरती, ये पृथ्वी परमेश्वर का दया से भरा है, मतलब सारे पाप करके बैठा है, सारे बलवा कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का दया से भरा है। नहीं तो ये धरती कब से गायब होना था। परमेश्वर का उस क्या है क्रोध के कारण ये धरती कब से नाश करना था, कब के का नाश होना था। पर परमेश्वर दया सागर है। ही इज अ गॉड ऑफ कंपैशंस। क्यों बहुवचन? क्यों? वो बहुतायत में दया दिखाता है और बार बार। दो अर्थ है, एक है बहुत दया मतलब तरस, वो इतना तरस खाता, इतना दया देता है, क्या है? योग्यता से भी बढ़कर वो क्या करता है? ज्यादा दया, ज्यादा जो तरस खाता है, और बार बार, एक बार नहीं, बार बार। इसलिए बहुवचन में इसराइल के इतिहास पूरा पढ़ के देख लीजिए। इसराइल के जो sorry, I am telling everything in Hindi. Are you able to get that? It is, I am just telling that I have given this compassion and forgiveness in plural. Why I have written it in plural? In Hindi and English it is in singular, but in Hebrew it is given in plural. Compassions and forgiveness. It is given in plural because God is a God of
compassion and forgiveness, it's not just for one time, it is his character. He shows abundant mercy, abundant compassion and forgiveness. He is rich in mercy. We have the song, he is rich in love, the song we sing. तो वो दया सागर है करके हिंदी में लिखा है। बार बार from the time of Exodus, from the time of Moses, we see if the Lord had acted according to the deeds of Israel, the story of Israel would have ended in Exodus itself. अगर परमेश्वर इस्राएली लोगों का पाप के अनुसार उन लोगों को सजा दिया होता, इस्राएल का कहानी कहाँ, निर्गमन में ही खत्म होना था। कितने बार परमेश्वर से उन लोग बलवा किया, कोई मूर्ति को पूजा नहीं करना करके बोला, उसका अगला क्या है, सोने के बछड़े को जो जो आज्ञा दिया वो सब कुछ, व्यभिचार नहीं करने करके बोला, उस मरुभूमि में उन लोग व्यभिचार भी किया। गिनती के किताब 21 में मोआबी लोगों के साथ व्यभिचार किए। जो भी आज्ञाएं उस मरुभूमि में दिया था, वाजा बांधा था, एक एक करके उन लोग तोड़ दिया। अगर परमेश्वर दया नहीं दिखाता, उन लोग का कहानी उस मरुभूमि में उसी जगह में इस्राएल का कहानी खत्म होना था। हमको इतना पढ़ने के लिए भी जरूरत एक दो किताब ही पढ़ना था, या पहला 2-3 किताब ही पढ़ना था इसराइल के हिस्ट्री के बारे में। इतना लंबा क्यों खींचा परमेश्वर का दया के, इतना बड़ा क्या है सिलेबस क्यों ओल्ड टेस्टमेंट का? इट इज बिकॉज ऑफ द कंपैशन एंड ये हमारे लिए ये क्या हो गया, क्रूरता हो गया। पर इसराइल के लिए ओल्ड टेस्टमेंट सिलेबस इज वेरी वास्ट, हिस्ट्री ऑफ इसराइल इज वेरी big. It is because of the love of the Lord for Israel and the compassion of the Lord for Israel. So it is, so ये प्रार्थना दानियल किस आधार पर प्रार्थना करता है? इस पाप से भरा हुआ इस जाति को क्या उम्मीद है? परमेश्वर का दया और क्षमा। परमेश्वर दया दिखाने वाला परमेश्वर है, इसलिए दानियल को हिम्मत है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर तो दया सागर है। Lord, you are a Lord who, you are a compassion and forgiveness belong to you. It is your character, Lord. Yes, you have made us to go into exile, but you are a God of compassion and forgiveness. ये सही है परमेश्वर, तूने हमें बंधुआई में भेजा, पर तूने क्या है, तू क्या है, दया और क्षमा का परमेश्वर है। बहुतायत में दया दिखाने वाला, बहुतायत में क्षमा करने वाला परमेश्वर। तो इस आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का दया और क्षमा में भरोसा करते हुए। ये नहीं बोल सकते परमेश्वर तो तुम्हारा न्याय में मैं नहीं, न्याय परमेश्वर अगर न्याय करेंगे तो क्या है, कोई भी नहीं। कई बार हमारा जिंदगी टूट जाते समय, पाप में टूट जाते समय, कभी भी ये नहीं सोचना परमेश्वर मुझे नफरत। शैतान हमारे कान में ये बोलता है तू पाप किया, अभी गए, भी परमेश्वर का सामने खड़े होने के लिए योग्य। सही है, हम योग्य नहीं है, पर एक बात हमें योग्यता देते हैं, उसका दया। और जो लोग अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर कभी तिरस्कार, सबसे बड़ा पापी को भी परमेश्वर क्षमा करने के लिए, परमेश्वर इतना बड़ा दया का सागर है। इसलिए कभी भी ये नहीं ये सोचकर बार बार पाप करो, ये नहीं, परमेश्वर दया का सागर है इसलिए हम पाप के सागर में तैरते हैं। नहीं, वो गलत है। पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है ये परमेश्वर का दया। और पर अगर हम पाप के कारण हम टूट गए हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया है, शैतान हमारा कान में बोलेंगे अभी फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तो लायक नहीं है करके बोलते समय हम क्या बोलना है, परमेश्वर कौन है? तो दया का सागर है। उसका दया कभी, उसके दया के ऊपर, उसका करुणा के ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों को कभी वो, ये पुराना नियम के बारे में बात कर रहा हूं, नया नियम में और गहरा है। परमेश्वर अपना जान, ये स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं, वो दया दिखाता है और क्षमा
करता है, नया नियम में उसका गहराई देखते हैं। परमेश्वर स्वयं उतर कर आया, उस प्रभु एक इंसान बनकर आया और पापी लोगों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। उसका दया और क्षमा और प्रेम का गहराई यीशु मसीह का क्रूस पर हम देखते हैं। वी सी द डेप्थ ऑफ द कंपैशन, लव एंड फॉरगिवनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। This is about the Old Testament. God is a God of, some people say God is a God of anger and wrath in Old Testament. परमेश्वर, कुछ लोग बोलते हैं Old Testament का परमेश्वर गुस्सा करने वाला परमेश्वर है और क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है। नया नियम में फ्री है। नहीं, पुराना नियम में भी, Old Testament also he is a God of compassion and forgiveness and grace. That's why इस्राएली लोग इतना साल क्या है, that's why we have a big history of Israel. Otherwise God would have destroyed them in Exodus, the book of Exodus itself, if he was a God of wrath and anger. परमेश्वर से दंड दिया है लोगों को गुस्सा में, पर खत्म नहीं किया। God is a God of compassion and forgiveness even in the book of Old Testament also. But in New Testament, in the life of Christ, we see the depth of that compassion and forgiveness and the love of God for His people and this world. In what? In His Son Jesus Christ, when He gave His own life for saving the world. That is the story of God's compassion है। तो दानियल इस आधार पर प्रार्थना, परमेश्वर आपका स्वभाव ये है, आप दया दिखाने वाला, ये सही है, तूने हमें बंधुआई में भेजा, पर आप दया का परमेश्वर भी है, इसलिए मैं मेरे लोग के लिए, दानियल दूसरा एक शब्द में मैं बता रहा हूँ, दानियल का शब्द नहीं है ये, दानियल इस आधार पर परमेश्वर का दया, परमेश्वर का क्षमा, इन चीजों के आधार पर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आगे पढ़ते समय सो वी कैन रीड, किसी एक व्यक्ति को 9 का 4 से लेकर 10 तक, अभी तक जो कुछ हमने देखा उतना पढ़ो, फिर अभी के लिए खत्म करते हैं। 9 का 4 से लेकर 10 तक। हाँ, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और बात का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और दयालु परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बदला किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या सभी क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर कर दिया है, इन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। बस 13 और 14 भी खत्म करते हैं, तो एक सेक्शन खत्म होगा। पहला सेक्शन मैंने बोला था ना 4 से 14, 10 तक मैंने 9 और 10 4 और आयत होगा, 11, 12, 13, 14, तो वो शायद रात को लेंगे ना, वही सही होगा, नहीं तो लंबा खींचना पड़ेगा अभी। तो इतना समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस मच? सो दिस इज लाइक अ मैसेज फॉर प्रेयर। क्या है दानियल का प्रार्थना, उससे क्या क्या सीख, मैं इसलिए इतना लंबा खींच रहा हूँ, हम भी थोड़ा
सीखे प्रार्थना के बारे में, परमेश्वर के बारे में, मध्यस्थ प्रार्थना करते करते समय हमारा सोच विचार क्या होना चाहिए. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स. आई कैन जस्ट स्किप दिस बिकॉज यू कैन यूर सेल्फ अंडरस्टैंड. मैं ये स्किप कर सकता हूँ, ये प्रार्थना सिर्फ विषन पढ़ा सकता हूँ, पर इसलिए ये प्रार्थना के बारे में लंबा मैं नोट्स तैयार किया है ताकि हम भी कुछ प्रार्थना के बारे में, so that we also may learn something from this prayer and the prayer life of Daniel. Okay, but I think by night we will be able to finish this prayer. Okay, who will pray? Sanjay. Any doubts regarding this?